السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سکون اللہ سے ہے، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آ جاتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے۔ اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ زندگی آزمائش کا سمندر، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں جد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فتنہ سے خراب ہوتی ہیں۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ جو الحباب کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر پھر بھی کیا کیا دکھا دیتا ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ پاک ہی جانتا ہے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بڑھتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے، انسان جب اللہ پاک سے راضی ہو جاتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنے کے کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنا زیادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ پاک کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہارے کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو آپ کا رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ جب اللہ پاک کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔
तुम्हारी तकदीर उतनी दफा बदलती है जितनी दफा तुम अल्लाह पाक के आगे हाथ फैलाते हो। अगर आज जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह पाक से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह पाक तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून होती है, जिसको अल्लाह पाक ने नमाज में रखा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सजदे में बेचैन दिलों की सिफा रखी है। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। कयामत की निशानी में से एक निशानी यह भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे हों। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। ज्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तगफार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तगफार मुश्किलात का हल है। दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। जिंदगी थका देने वाली चीज है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और सब रब पर छोड़ दो। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है, फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हें ही लगती हैं जिन्हें अल्लाह पाक थामना चाहता है। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ है, वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि और मजबूत हो जाओ। जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। जो पसंद हो उसका इंतजार करना। नफरत गुनाह से करो, गुनाह करने वाले से नहीं। शायद तुम्हारी मोहब्बत में आकर वो गुनाह करना ही छोड़ दे। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म न करे, और बेशक यह रिश्ता आपका अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। जो लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह पाक तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह पाक के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह सीधा अर्श तक जाती है। लोग जितना भी दिल दुखाएं, यह याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तो ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है। लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक कुरान में कहता है, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि रब जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाजता है। 5 जगहों पर 5 चीजों की हिफाजत करो। महफिल में जुबान की, बाजार में आंख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पर पेट की और निगाह में हया की। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर करती हैं। अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह पाक की रजा के लिए रद्द कर देते हो, वो उसी ख्वाहिश पर राजी होकर उसे तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। जब अल्लाह पाक किसी से नाराज होता है तो उसे ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते रहते हैं, उसे यह खबर ही नहीं होती कि उस रब ने उसके हक में और भी बेहतर लिखा होता है। इंसान की तमाम परेशानियां 2 बातों की वजह से हैं। तकदीर से ज्यादा चाहता है, वक्त से पहले चाहता है। बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफात और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, रिश्तों के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। यह दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा न कर सके, उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्जों को जाया करना है। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है। जिस तरह दीवार से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है, तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हुई। ऐसे शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत है।
जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी ना भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह पाक सब जानता है। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, जो पसंद हो उसका इंतजार करना। किसी के बुरे कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी जुबान से हर शख्स अपना जर्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है कि नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले, अल्लाह पाक मिल जाता है, और जब अल्लाह पाक मिल जाता है तो फिर सब मिल जाता है। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामयाबी नजर आती है। नमाज इतनी ही जरूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना जरूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज्जत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। हजरत अली ने फरमाया, जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी कुछ ना छुपाओ, जो तुम पर एतबार करता हो उससे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हम आपसे इख्तिलाफात और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जब अल्लाह पाक किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। तुम्हारी तकदीर उतनी दफा बदलती है जितनी दफा तुम अल्लाह पाक के सामने हाथ फैलाते हो। अगर आज जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह पाक से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह पाक ने तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून होती है, जिसको अल्लाह पाक ने नमाज में रखा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सजदे में बेचैन दिलों की सिफा रखी है। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। कयामत की निशानी में से एक निशानी यह भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। लोगों से याद करने का सिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। ज्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तगफार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तगफार मुश्किलात का हल है। दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। जिंदगी थका देने वाली चीज है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और सब रब पर छोड़ दो। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हें ही लगती हैं जिन्हें अल्लाह पाक थामना चाहता है। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ है, वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि और मजबूत हो जाओ। जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। सब्र की 2 सूरत, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। नफरत गुनाह से करो, गुनाह करने वाले से नहीं। शायद तुम्हारी मोहब्बत में आकर वो गुनाह करना ही छोड़ दे। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म ना करे, और बेशक यह रिश्ता आपका अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। जो लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह पाक तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह पाक के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह सीधा अर्श तक जाती है। लोग जितना भी दिल दुखाएं, यह याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है। लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक कुरान में कहता है, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि रब जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाजता है। 5 जगहों पर 5 चीजों की हिफाजत करो, महफिल में जुबान की, बाजार में आंख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पर पेट की और निगाह में हया की। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर करती हैं। अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह पाक की रजा के लिए रद्द कर देते हो वो उसी ख्वाहिश पर राजी होकर
उसे तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। जब अल्लाह पाक किसी से नाराज होता है तो उसे ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते रहते हैं उसे एक खबर ही नहीं होती कि उस रब ने उसके हक में और भी बेहतर लिखा होता है। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से तकदीर से ज्यादा चाहता है, वक्त से पहले चाहता है। बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफात और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। यह दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा न कर सके उसके सामने जुबान से इजहार करो, सिर्फ लफ्जों को जाया करना है। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है। जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है, तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हुई। ऐसे शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो तीन चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जो तुम्हें खुशियों में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह पाक सब जानता है। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, जो पसंद हो उसका इंतजार करना। किसी के बुरे कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी जुबान से हर शख्स अपना जर्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है कि नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले अल्लाह पाक मिल जाता है, और जब अल्लाह पाक मिल जाता है तो फिर सब मिल जाता है। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामयाबी नजर आती है। नमाज इतनी ही जरूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना जरूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सज्जों की लज्जत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। हजरत अली ने फरमाया, जिंदगी के ये तीन उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफात और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जब नियत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नियत लोगों से छुपा सकते हैं। जिसने हमको बनाया है सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही है। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को जिंदा रखे। दुनिया में अगर अपनी कोई जगह बनानी है तो सबसे खूबसूरत जगह किसी की सोच में रहना, किसी की दुआ में रहना और किसी के दिल में रहना। तुम्हारी हर वो जीत हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। अगर हमारा अखलाक सिर्फ मन चाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आम नाख्तरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा उसूल अपना लीजिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक खब है, जो मिला है वो लाजवाब है। गम और परेशानियां हर एक की जिंदगी का हिस्सा हैं। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। वो जो पत्थर से पानी निकाल सकता है वो अपने बंदे के लिए वसीला बना ही देता है। जब अर्श वाले की तरफ से हाँ तो फर्श वालों की तमाम सांसें बेकार हो जाती हैं। दुनिया की खूबसूरत हकीकत आंखों से नहीं दिल से महसूस की जाती है। बस फिर जब मैंने दिल से खूबसूरत ताम को महसूस करना चाहा तो मैंने अपने रब से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। जिस तरह हम अपने इख्तियार में आई हुई चीजों के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिसके इख्तियार में हम हैं वो हमारे लिए करता है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना होता है। कुछ बातों को समझने के लिए वक्त दरकार होता है। कुछ हकीकत वक्त से पहले आकार हो जाए तो शायद अपनी कीमत खो दे। कुछ जज्बात की हकीकत भी ऐसी होती है, उनकी असलियत एक वक्त के बाद पता चलती है।
وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دے۔ اللہ پاک پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر کن کہے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ آپ کے چند مجب الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اللہ پاک سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ ہیرے جواہرات حاصل کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان خود اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کر لے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین ثم آمین۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ اعتراض کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر بامقصد۔ زندگی صرف انسان کو دی گئی اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوق سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، احمد سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ کے حل کے لیے بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو۔ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان دلوں کو سکون دے میرے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا لیکن ہم سب کے ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان نہ پہنچ سکا۔ غرور کس بات کا صاحب آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدتر سزا یہ ہے کہ اللہ پاک تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانے، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معاف کر دینا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہجانے کی بھی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو وجاہت دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل کرتے ہیں۔ بڑا کام وہی شخص کرتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔
शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, मगर इंसान कहीं कहीं जन्म लेते हैं। किसी की माजी पर उसकी तसल्ली करने से पहले सोच लो कि कहीं उसका माजी तुम्हारा मुस्तकबिल ना बन जाए। नफरत गुनाह से करो, गुनहगार से नहीं। शायद वो आपकी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। जरूरतमंद को दहलीज से खाली ना लौटाओ, अल्लाह पाक के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जुबान में से सबसे मीठी जुबान मतलब की होती है। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। किसी की नरमी को उसकी कमजोरी न समझो। अगर वो सब्र करके चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। एक रब राजी रहे, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं। ऐ मेरे मौला, जो हमारे हक में बेहतर है बस वो अता फरमा, और जो नहीं बेहतर उसकी सोच से भी महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह पाक वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि यह बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। उस शख्स को कोई भी कभी नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर ना आती हो। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फर्क नहीं पड़ता उनके सामने अपने अल्फाज जाया करने का क्या फायदा। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह पाक ही जानता है। न कर नसीब से इतने के लिए इंसान जब अल्लाह पाक से राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपनी सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। वालदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकामयाब रहोगे। दुख में कभी भी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह पाक ने आजमाइश के काबिल समझा। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। ऐसे शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत हो। हजरत अली से किसी ने सवाल किया कि किस तरह पता चलेगा कि इंसान पर आने वाली मुसीबत सजा है या आजमाइश। आपने जवाब दिया, जो मुसीबत इंसान को अल्लाह पाक से दूर कर दे वो सजा है, और जो अल्लाह पाक के नजदीक कर दे वो आजमाइश। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरे वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। हुजूम के गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। ज्यादा जितना सोचोगे उतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेगी। एक तरफ नफरत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है, दूसरी तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने में जिंदगियां लग जाती हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो यह समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत दे रहा है। उसमें कभी भी खयानत मत करना। दुनिया को राजी करने की कोशिश में ना लगो। दुनिया ना किसी की से खुश हुई ना होगी। राजी करना है तो रब को करो, जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।